We actually started a message on values, discovering our values that determines our destiny. और उससे पहले रविवार में हम लोगों ने उन मूल्यों के बारे में पढ़ा था जो हमारे लक्ष्य को बताती है. And I shared with you how, as a follow-up to that message, we will be taking a session on understanding the values of a church. और फिर मैंने आपको कहा था कि उसके अगले रविवार में हम उन मूल्यों के बारे में बात करेंगे जो हमारी इस कलीसिया को बताती है या डिफाइन उसको व्याख्यान देती है. But I trust that you had enough time to listen to that message and think about your own personal values of life. लेकिन मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने थोड़ा समय लिया होगा सोचने के लिए कि आपके जीवन में मूल्य क्या है वो मूल्य. Have you been able to review perhaps what is the most important value that I want to uphold in my life that will take me to live as a life of legacy and destiny in life? क्या आपने सोचने की कोशिश करी कि मैं अपने जीवन में किन मूल्यों को महत्व दूंगा जो मेरे लक्ष्य को निर्धारित करेंगी? But today we're going to talk about the values of a church, the corporate body of Christ. लेकिन आज सुबह हम देखने जा रहे हैं कि हमारे कलीसिया के लिए या मसीह की जो देह है उनके मूल्य क्या है. We have personal values. हमारे व्यक्तिगत मूल्य है. We have values that we created for our family, our home. हमारी पारिवारिक जीवन में हम अपने घरों के अंदर कुछ मूल्यों को बना के रखा है. Those of you who are family people, people like Amin who are preparing to start their family, you need to start thinking about what are some of the values I want to embed as the foundation for my life, for our family life. और कई लोग जो अपने परिवार को स्थापित करने वाले होते हैं जैसे भाई आमीन है तो वो लोग पहले से तैयारी करते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए किन मूल्यों को आधारित करूंगा. And you need to make that values known to your children. और आपको उन मूल्यों को अपने बच्चों को भी बताना है. Values, as I shared with you, are non-negotiables. ये ऐसे कुछ मूल्य हैं जिनको आप तोल भाव या मोल भाव नहीं कर सकते. You turn with me to the Gospel of Matthew chapter 6 verse 21. आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 21वें पद में आते हैं. Here Jesus is talking about the importance of that value. और यहाँ पर यीशु उन मूल्यों के बारे में बात करता है. Jesus says, "For where your treasure is, that's where your value will be." और यहाँ यीशु ऐसा कहते हैं क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा. So wherever your value, whatever you put value, that's where you're going to put your mind, your efforts into. तो जहाँ कहीं भी आपका मन लगा रहेगा या जहाँ चीज आपके मूल्य की होगी वहीं पर आप अपनी बुद्धि या अपना दिमाग वहीं डालेंगे. So as a church, there are some things that we want to put our energy and our efforts. इसलिए कलीसियाई रूप से हम भी मिलकर हमको कहीं अपनी शक्ति या अपने आप को निवेश करना है. Last 14 years we have been running this church based around these values. इन 14 सालों में पिछले 14 सालों में इन्हीं मूल्यों के चारों तरफ हमने अपने आप को आधारित किया है. But today we're going to look at this very specifically, that everybody in our church is very clear about the direction and the future where we are going. लेकिन आज सुबह हम बड़े स्पष्ट रूप से इन मूल्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे आगे भविष्य के बारे में या जिस रास्ते पे हमें चलना है आगे उसको बताएंगी. Values are part of our DNA. ये जो मूल्य है वो हमारे डीएनए का हिस्सा है. We have DNA in our body. हमारे शरीर के अंदर डीएनए होता है. The church also has a DNA. कलीसिया का भी एक डीएनए होता है. So I was looking for a definition of what is DNA. और फिर मैं परिभाषा देखने की कोशिश कर रहा था कि डीएनए होता क्या है. I found a simple definition on Baiju's website, the tutorial Baiju, the company Baiju. और फिर मैंने बाइजू जो वो है मैंने वहां पर देखने की कोशिश करी कि एक साधारण परिभाषा डीएनए की क्या है. They say that DNA is a group of molecules that is responsible for carrying and transmitting the hereditary materials or the genetic instruction from parents to offsprings. तो ये जो डीएनए होता है ये एक ऐसी चीज होती है जो एक अणु होता है, एक समूह होता है अणु का, मॉलिक्यूल्स का, जो एक जगह से दूसरी जगह जो विषाणु जो जीवन जो माता पिता से बच्चे को मिलते हैं कि वो अपना जीवन को आगे बच्चों को उत्पन्न कर सके. So it is essentially the code of life that defines who you are as a person. तो एक जीवन संहिता है जो बताती है कि आप एक व्यक्ति होकर कैसे अपने जीवन को बिता सकते हैं. Every one of us is coded with this genetically engineered a way of functioning that is passed on from your ancestors down to you, and you will pass it on to your kids. तो ये एक ऐसी चीज होती है जो हम ये जो चलती चली जाती है जो हमको पुरखाओं से मिलती है और आगे भविष्य में भी चलती है. And so in the
physical sense, it is so important, and so it is in the spiritual sense. There is a DNA for the church that has been passed on from the apostolic fathers of the church. तो जैसे एक परिवार को चलाने के लिए शारीरिक रूप में डीएनए की जरूरत होती है, वैसे कलीसिया के भी चलाने के लिए एक डीएनए चाहिए होता है, जिसके लिए हम लोग जो हमारे प्रेरित रहे कलीसिया के पहले इतिहास में उनके मूल आधारों पे हम चलते हैं. Every church has a DNA. हर कलीसिया का एक डीएनए होता And है. every church does not have to look the same. और सारी कलीसियों को एक जैसे दिखने की जरूरत नहीं है. You see, parents give birth to the child. देखिए बच्चे, माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं. But not all the children look the same. लेकिन सारे बच्चे एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं. Blood test will prove that they come from a different lineage. और जो ब्लड टेस्ट किया जाता है उसके आधार पे पता चलता है कि वो किस परिवार से आते हैं. So the churches will have the same DNA. तो कलीसिया का जो डीएनए है वो एक समान होगा. But they all express itself in different ways. लेकिन वो कलीसियाएं अपने आप को अलग-अलग प्रकार से प्रकट करती हैं. So if you go to all the churches in the Tri-City region, तो जब आप ट्राई सिटी के अलग-अलग कलीसियाओं में जाएंगे, you will find that all of them are churches. आप देखेंगे सारे लोग कलीसियां ही हैं. Everybody reads the Bible. सब लोग बाइबल पढ़ते हैं. Everybody worship Jesus. सब लोग परमेश्वर की आराधना करते But हैं. they all have different expressions, different flavors, different look to it. लेकिन सब लोगों के अलग-अलग तरीके हैं, अलग-अलग दिखने के तरीके हैं. You are part of Life Bridge because you love the DNA, you love the core values, you love the expression of how we as a church do church. आप कलीसिया हमारे लाइफ ब्रिज के हिस्सा है, क्योंकि आपको यहाँ का डीएनए या यहाँ की जो चीजें हैं, जो तरीका है वो अच्छा लगता है या पसंद आता है. So we must remember this, इसलिए हमको ये याद जरूरी रखना that है. our DNA as a church has been passed on from the very heart of God. इसलिए हमको ये समझना है कि हमारे कलीसिया का जो डीएनए है वो परमेश्वर के हृदय से ही निकल कर आया है. And that DNA is given to us so that we are a people who live for the glory of God. इसलिए हम लोगों को उस डीएनए के आधार पर अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है. We must also remember हमको ये चीज भी याद रखनी है that God established His church कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया की स्थापना so करी, that we manifest the glory of God in the earth. कि हम परमेश्वर की महिमा को इस पृथ्वी पर प्रकट कर सकें. Amen. But today, sadly, when you look at churches as a whole, लेकिन दुखद बात तो ये है कि जब आप कलीसिया को एक पूरी रीति से कलीसिया को देखते हैं the तो values have shifted away. जो मूल्य है कलीसियाओं के वो अलग-अलग हो चुके It हैं. is not necessarily about the glory of God. अब वो बात सिर्फ विशेष करके परमेश्वर की महिमा के ऊपर It आधारित is not नहीं है. necessarily about people being discipled and followed, living a holy life for Jesus. वो कलीसियाएं विशेष करके चेला बनाने के लिए या पवित्र जीवन जीने के लिए उनके मूल्य वो नहीं रहे हैं. And that's why Jesus said इसलिए यीशु ने कहा है in Matthew chapter 6 verse 21, मत्ती के 6 के 21 में, where your treasure is, there your heart will also be. जहाँ तेरा धन रहेगा वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा. So as a church, इसलिए कलीसिया where होकर is our heart? हमारा हृदय किधर लगा है? What are we focusing upon? हम अपना ध्यान केंद्र किस तरफ रख रहे हैं? There is a book written by Neil Cole, नील कौर के द्वारा एक किताब लिखी गई है and his book is called Organic Church. और उनकी किताब का नाम है जैविक कलीसिया. In his book, he talks about the DNA of the church. और वहां पर वो कलीसिया के डीएनए के बारे में बात करते हैं. And he says there are three components that make up the DNA of the church. और वो कहते हैं 3 मूल ऐसी बातें हैं जो कलीसिया के डीएनए को बनाती हैं. Number one सबसे पहली बात is divine truth. एक वो दैव्य सत्य जो है, The divine truth is the word of God. जो दैव्य सत्य है वो परमेश्वर का वचन है. The Holy Bible is an important aspect of the DNA of the church. जो पवित्र शास्त्र है वो कलीसिया के डीएनए का मुख्य भाग है. Number two, दूसरी बात, Neil Cole says that DNA, one of the components of DNA, is a nurturing relationship. नील कोल कहते हैं कि जो दूसरी बात है जो कलीसिया के डीएनए को स्थापित करती है वो है कि हमको एक पौष्टिक संबंध या रिश्ता चाहिए A कलीसिया में. relationship with one another that cares for each other, that love one another, that supports one तो another. कलीसिया में एक ऐसा संबंध चाहिए है जहां हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को पोषण दें. And finally, और आखिरी में he talks about the apostolic mission. वो बताते हैं कि प्रेरितीय सेवकाई के बारे And में, that's मिशन talking के बारे about में. the fulfilling of the Great Commission on earth. और वो बताती है कि वो परमेश्वर की जो महान आज्ञा है उसको इस पृथ्वी पर पूरा करना. So these three strands give church its biblical तो identity. इसलिए जो 3 जो धागे हैं, डोरियां हैं, वो कलीसिया को अपनी पहचान देती है. Every church must have these three DNA components that holds the DNA strand
together: divine truth, nurturing relationships, and apostolic mission. इसलिए बहुत जरूरी है कि हर कलीसियाओं में ये तीन डोरियां होनी बहुत जरूरी है, जहां पर दैव्य सत्य है, पोषण मिलता है एक संबंध में, और वहां पर साथ ही साथ प्रेरितीय एक मिशन है जो रखा जाता If है. we do not have these as the part of our DNA, अगर हमारा ये तीन चीजें हमारे डीएनए का हिस्सा नहीं है तो we are simply an organization. तो फिर हम सिर्फ एक संस्था बन के रह जाते We हैं. are just an institution. बस फिर हम एक संस्था है, We are nothing better than a business on the down the road. और हम फिर उससे ज्यादा कुछ अच्छे नहीं है जो व्यापार जो लोग कर रहे हैं सड़क के कोने में. So these values sustain and upholds the mission and the vision of the local church. इसलिए ये जो मूल्य है वो कलीसिया के मिशन और जो दर्शन है उसको लेकर चलते हैं. This tells the world who we are as people. ये वो तीन चीजें हैं जो लोगों को दुनिया में बताती है कि हम कलीसियाई रूप से कौन हैं. But unfortunately, लेकिन दुर्भाग्यवश a lot of churches have moved away from these ingredients. बहुत सी कलीसियाएं जो है इन तीन चीजों से दूर हो चुकी हैं. There are a lot of churches that are focusing on, bless me club, or they're all about how they can be blessed, and so they focus on a theology of prosperity. इसलिए कई कलीसियाएं जो है कैसे आशीष पानी है, कैसे तरक्की पानी, सफलता पानी है, उसी के बारे में केंद्र रखते हैं. Or in many places or in many churches, the focus is not God or His Word, but the man who is the leader of the church, and they almost worship and venerate this person who is the pastor. कई ऐसी कलीसियां हैं जहां पर परमेश्वर और परमेश्वर के वचन को मूल्य नहीं दिया जाता, लेकिन जो प्रभु का दास यहाँ खड़ा होता है आगे, वो कैसा है, उसकी बातें कैसी, उस पर केंद्र लोग रखते And so हैं. it's very important as a church, as Life Bridge, we truly understand what is our value. इसलिए बहुत जरूरी है हम लाइफ ब्रिज कलीसिया होकर ये समझ जाएं कि हमारे मूल्य क्या है. When you go home, read the book of Philippians chapter 3. जब आप घर जाते हैं तो कृपया करके फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय को जरूर पढ़िएगा. Philippians chapter 3 verse 4 to 14, Paul is talking about the values that he wanted to see in the church at Philippi. फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 4 पद से लेके 14 पद तक वहां पौलुस बता रहा है वो कैसे मूल्यों को चाहता है कलीसिया He में. says, as a church, I wanted to boast about many things about our church. वो ये कहता है, पौलुस कहता है, कलीसिया होकर मैं कई कलीसिया की बातों के ऊपर घमंड करना चाहता There था. are many feathers or many stars on our hat or on our shirt that we can say this is what we are good at. और वो कहता है कि हम कई चीजों को, कई पंखों को लगा सकते हैं ये कहने के लिए कि इन चीजों में हम अच्छे हैं. Okay, so as a church we can say, wow, we have our own church building. और हम कलीसिया होकर कह सकते हैं अरे कितना अच्छा है, हमारे पास तो एक इमारत है. Or our church is a very high-tech church. और हम कह सकते हैं तकनीकी रूप से हमारी कलीसिया तो बहुत उच्च है. Or we can say we have the best music instruments, हम कह सकते हैं हमारे पास तो सबसे उत्तम वाद्य यंत्र है. Or we can say we have some of the best singers. और हम कह सकते हैं हमारी कलीसिया में सबसे अच्छे गायक भी हैं. Paul says, yeah, I can talk about all of these things. पौलुस कहता है हाँ, इन सब चीजों के बारे में बात कर सकता हूँ But मैं. he says, लेकिन वो कहता है, I count all of them trash. वो कहता है मैंने इन सब चीजों को कूड़ा समझ लिया है. He calls them dung. वो उसको गोबर कहता है. He says they are rubbish. वो कहता है ये तो बिल्कुल कूड़ा है. Because Christ is more important than any of those things. क्योंकि वो कहता है कि मेरे लिए मसीह इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है. What was valued to Paul at the church in Philippi was the centrality of Jesus in the church. फिलिपियों की कलीसिया के लिए, पौलुस के लिए जो सबसे मुख्य बात थी वो मसीही केंद्र हो. Hallelujah. So if Life Bridge is not centered on the person of Jesus, इसलिए अगर हमारा लाइफ ब्रिज यीशु के व्यक्तित्व के ऊपर आधारित नहीं है and तो, if it is all about James Chaco, और अगर ये पूरी रीति से बस जेम्स चाको के बारे में if है, James Chaco is dead, अगर जेम्स चाको मर जाता है, Life Bridge is dead. लाइफ ब्रिज मर जाएगी. Hello. So what is it about? तो ये किस चीज के बारे में है फिर? Is it about me क्या ये मेरे बारे में है or is it about कि Jesus? क्या ये यीशु के बारे में Why है? are you here today? आप आज सुबह यहाँ क्यों हैं? Are you here because Pastor James is here today? आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि पास्टर जेम्स यहाँ पर है. Oh, Pastor James is out of town, so let's stay home this weekend. अरे पास्टर जेम्स इस समय शहर में नहीं है तो इसलिए इस हफ्ते हम घर में रहेंगे. Then you have a problem. फिर आपको एक समस्या है. You're not following Jesus. आप यीशु का पीछा नहीं You're कर रहे. following a man. आप एक मनुष्य का पीछा कर I'm रहे हैं. not God. मैं परमेश्वर नहीं हूँ. Jesus is God.
यीशु परमेश्वर है। We are here not because of any man. हम यहाँ किसी मनुष्य के कारण नहीं We है। are not here because of Pastor Jobin आप यहाँ पास्टर जॉबिन के कारण नहीं or है, Adibu. अदीबू भाई के कारण और नहीं है, आमीन। या आमीन के कारण We are नहीं है। here because of Jesus. हम यहाँ पर यीशु के कारण है। That's what Paul is talking about the church in Philippi. यहाँ पर फिलिपियों की कलीसिया के लिए पौलुस यही कहता है, I will be there where Jesus is. मैं वही रहूंगा जहाँ मसीह होगा। He said, I'll be with you. यीशु ने बोला मैं तेरे संग रहूंगा। That means Jesus is here in our midst. इसका मतलब यीशु हमारे मध्य में है। He is the Lord of the church. वो कलीसिया का प्रभु है And His presence is here. और उसकी उपस्थिति यहाँ है। Hallelujah. So हालेलुया। our core values इसीलिए हमारे मूल जो बातें हैं, that makes our DNA. जो हमारे डीएनए को बनाती हैं, Your DNA is determined by what you believe. आपका डीएनए बताता है कि आप किस चीज पर विश्वास करते That हैं। is your faith. वो आपका विश्वास है। It is also determined by where you belong. और वो ये भी बताता है कि आप किसके हैं। That is the object of your love. आपके जीवन में प्रेम का वो चीज क्या है जिसको आप Your प्रेम करते हैं। affinity, your identity, आपकी पहचान या आपका जो लगाव है, and how you bless others. और आप दूसरों को कैसे आशीष देते हैं। That is what make up faith, love, and hope. वो बना देता है विश्वास, प्रेम और आशा को। Three things that are very important for a child of वो God. तीन चीजें जो एक यीशु के बच्चे के लिए बहुत अनिवार्य है। Your faith, आपका विश्वास, your faith in the word of God, आपका विश्वास परमेश्वर के वचन के your ऊपर, faith in God, आपका विश्वास परमेश्वर के your ऊपर, faith in Jesus, आपका विश्वास यीशु के and your ऊपर, love for Jesus and His people. और आपका प्रेम यीशु के लिए और यीशु के लोगों के लिए, Your hope for the future आपका आशा उस भविष्य के लिए, that enables you, motivates you to bless and care for one another. जो आपको प्रेरित करती है कि आप एक दूसरे के लिए चिंता करें, उनसे प्रेम करें। So as we determine the value of our church, इसलिए जब हम अपनी कलीसिया के मूल्यों को आधारित कर रहे हैं, we need to ask this question to ourselves. हमको ये प्रश्नों को अपने आप से पूछना है। As a church, कलीसियाई रूप से what are we really focused about? हम किस चीज के ऊपर विशेष रूप से केंद्रित हैं? Are we focused about the technicalities of things? क्या हम इन तकनीकी चीजों के ऊपर अपना केंद्र रख रहे हैं, Or are we really focused on the winning of souls? और या हम उस चीज के ऊपर केंद्र रख रहे हैं कि हम कैसे प्राणों को बचाएं? Does it bother you if the chairs are empty? क्या आपको ये चिंता करती है कि अगर कुर्सियां खाली आप देखते हैं Or तो? is it only the concern of the pastor that the the seats are empty? और क्या ये सिर्फ कलीसिया के पासबान की जिम्मेदारी है, उनकी चिंता है कि अगर कुर्सियां खाली हैं तो? If there is an empty seat next to you, अगर आपके साइड में कोई कुर्सी खाली है तो it should bother you. आपको बहुत ज्यादा बेचैनी होनी चाहिए है। Hello? That's our focus. ये हमारा केंद्र है, Because our treasure, where our treasure is, that's where our heart will be. कि जहाँ हमारा धन होगा वहीं हमारा मन भी लगा रहेगा। Our treasure is souls for the kingdom of God. हमारा धन है परमेश्वर के राज्य के लिए प्राणों को जीतना। You all are treasures आप सब खजाना हैं for me. मेरे लिए। If you are absent here, अगर आप यहाँ अनुपस्थित होते it हैं, bothers me. मुझे बहुत चिंता देती है। It doesn't matter whether I'm present here or not. मैं यहाँ हूँ या उपस्थित नहीं हूँ तो You see भी। that little camera over there? आप देख रहे हो वो छोटा सा कैमरा? I look मैं वहां से देखता on हूँ, my phone मैं अपने फोन में देखता and I हूँ zoom in. और मैं उसके ऊपर ध्यान से देखता हूँ Who उसमें। is present? कौन आया है, Which seat is empty? कौन सी कुर्सी खाली Whether है। I'm in America, Australia or Cambodia, I check every Sunday. चाहे मैं अमेरिका में हूँ, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, कहीं पे भी हूँ, मैं हर रविवार में जो हूँ उससे देखता हूँ। I was thinking to myself, मैं अपने आप से ऐसे सोच if रहा as a था, pastor, that's what I do. अगर पासवान होकर मैं ऐसा करता हूँ, God of the church, परमेश्वर जो कलीसिया का परमेश्वर His है, eyes are on you. वो हमेशा अपनी आंखों को आपके ऊपर रखता है। I have to depend on that. मुझको तो उस पे निर्भर होना पड़ता है। And the internet is not working. और अगर जो है इंटरनेट काम नहीं कर रहा I will होगा, call Brother Rajesh. मैं जो हूँ भाई राजेश को राजेश कॉल भाई करता क्या हूँ। हो गया? राजेश What happened? इंटरनेट नहीं चल रहे हैं, जल्दी उसको करो, मुझे देखना है। But God is not dependent on internet connection. लेकिन परमेश्वर जो है इंटरनेट कनेक्शन पे निर्भर नहीं रहता। He sees you. वो आपको देखता है। He is so sad when on Sunday morning you are lazy and you are sleeping वो in. बहुत दुखित होता है अगर आप संडे रविवार में आलसी होते हैं और देर में आते हैं। You set your alarm for work. आप जो है अपने कामों के लिए अलार्म को रखते You हैं। check in and put your thumb impression at office on time. आप अपने अंगूठे को लगाते हैं जब आप सही टाइम पर पहुंचते हैं अपने काम करने के लिए। And God is looking from heaven. और परमेश्वर स्वर्ग से
देखता है। He has a thumb impression that is more powerful than any company, AI or anything have developed. और उसके पास भी एक मशीन है जहां पर वो अंगूठा लगवाता है, Hallelujah. जो सबसे उत्तम है। Amen. What gets our attention? क्या चीज है जो हमारा केंद्र लेकर Where are जाती we है? putting most of our money? कहां पर अपना ज्यादा पैसा हम निवेश कर रहे हैं? What will you get in trouble for if you don't do or if you mess up? क्या चीज आपको परेशानी में डाल देगी अगर आप कुछ गलती कर बैठते हैं तो? What is the content of the preaching from the pulpit Sunday after Sunday? कलीसियाओं में रविवार दर रविवार क्या है वो बात जो प्रचार की जाती है? What gets the most energy that we put into? क्या वो चीज है जिसमें हम अपनी ज्यादा शक्ति लगा देते हैं? What is it that we measure? क्या वो चीज है जिसको हम ज्यादा नाप रहे हैं, तोल रहे हैं? What is it that people get very excited about? क्या वो चीज है जिसमें लोग जो है बड़े उत्तेजित से हो जाते हैं? What is it that people are willing to stand and be counted for? ऐसी वो कौन सी चीज है जिसके लिए लोग बड़ी रुचि लेते हैं, उसके लिए खड़े रहते हैं और What are the गिनती deep करते हैं? convictions of your heart? आपके हृदय के सबसे गहरे वो कौन सी ऐसी बात है जिसका आपको कायलता मिलती है? What is it that we will accept and what is it that we will refuse? कौन सी वो बातें हैं जिसको आप स्वीकार करेंगे, कौन सी वो बातें जिसका आप तिरस्कार करेंगे? What is it that gives you a sense of urgency? कौन सी वो बात है जिसके लिए आपको बहुत जल्दबाजी है? Hallelujah. Somebody said like this. किसी ने ऐसा कहा है, The simple life is not about getting more things done, साधारण जीवन ये नहीं होता कि हम ज्यादा चीजों को कर लें, but about getting the right things done. लेकिन ठीक चीज को कर लें। Some people are so busy doing so many things. कई लोग कई चीजों को करने में इतना व्यस्त My हैं। grandfather used to tell me when I was a kid and I was messed up. जब मेरे दादाजी थे और वो मेरा जीवन ठीक नहीं था तो मुझसे कहते थे, I was a rebellious boy. मैं बहुत ही ज्यादा मैं जो हूँ झगड़ा करने So वाला my बेटा था। grandfather used to tell me, James, you behave like a dog who went to the market. और वो मुझसे कहते थे, मेरे दादाजी कहते थे, तुम उस कुत्ते के समान हो जो बाजार में चला जाता है। The dog goes to the market, wanders around. At the end, he came home empty-handed, didn't buy और anything. वो कुत्ता क्या करता है, बाजार में सब जगह घूम के आएगा और घर में आएगा बिना खाली हाथ And आएगा। sometimes our life is like that. हमारे जीवन भी कई बार ऐसी ही We're होता है। so busy running around. हम हर चीजों में इतना व्यस्त हैं, इधर At उधर the भाग रहे end हैं, of the day, लेकिन दिन के अंत में what did you do? आपने किया है? Nothing. कुछ भी नहीं। That is not what God wants. ये वो चीज नहीं है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। You must keep in mind, आपको अपने दिमाग में ये बात रखनी है। our value as a church drives our church. हमारे जो कलीसिया के मूल्य हैं वो हमारे मूल्यों को चलाते हैं। So we must understand these God's values. इसलिए हमको परमेश्वर के इन मूल्यों को समझना बहुत जरूरी है। Discover what God values for the church. खोज करने की कोशिश करें कि परमेश्वर के वो मूल्य क्या है कलीसिया के लिए। In the book of Ephesians chapter 5 verse 8 to 10, इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय 8 पद से लेके 10 Paul पद तक, says, once you were full of darkness, पौलुस कहता है पहले तुम पूर्ण रीति से अंधकार में थे, but now you have the light from the Lord. अब तुमको प्रभु से ज्योति मिली है। So इसीलिए यद्यपि live as people of light. इसलिए ज्योति के संतानों के समान चलो, For this light within you produces only what is good, क्योंकि ये ज्योति तुम्हारे अंदर वही उत्पन्न करती है जो भलाई होती है, right, जो धार्मिकता है and true. और जो सत्य है। Carefully determine what pleases the Lord. ध्यान से परखो कि यहोवा परमेश्वर को क्या भाता है। Carefully determine your value. ध्यान से परखो कि यहोवा प्रभु को क्या भाता है। Hallelujah. Secondly, दूसरी बात, we need to allow God's value to shape our हमको ये values. बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के मूल्यों को अनुमति दें कि वो हमारे मूल्यों को आकार दें। Allow God's value to shape our values. अनुमति दे परमेश्वर के मूल्यों को कि वो हमारे मूल्यों को आकार दें। That's what Paul says. वही पौलुस कहता है, Carefully determine. ध्यान से जो है परखो। In other words, दूसरे शब्दों में, what the Lord values, that's our value. जो चीज भी परमेश्वर को मूल्य है वही हमारे मूल्य है। So what is important to God? इसलिए परमेश्वर को किस चीज का महत्व That's होता why है? here at Life Bridge Church, इसलिए यहाँ इस कलीसिया लाइफ ब्रिज में we have prayerfully and carefully looked at what God wants us to do. हमने बहुत प्रार्थना के साथ और बड़े ध्यान से उन चीजों को रखा है जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता And है। so for the last 14 years, this has been our mission. इसलिए 14 सालों से ये हमारा मिशन रहा है। Our mission at Life Bridge Church हमारे मिशन क्या है इस लाइफ ब्रिज कलीसिया में? is to raise up fervent followers of Jesus Christ, कि हम परमेश्वर के लिए नित्य आगे बढ़ने वाले जो उसके अनुयायी हैं उनको उत्पन्न करें, who will reach out and impact communities and cities and nations
for the kingdom of जो God. लोग कलीसियाओं को, समुदायों को, शहरों को, राज्यों को परमेश्वर के राज्य के लिए जो है उनके पास पहुंच जाए। How many of you know this by heart? आप में से कितने लोगों को ये चीज दिल से पता है? Remember in our old church, we had this on our wall. आपको याद है पुरानी वाली कलीसिया में हमारी दीवार पे ये लिखा गया था। Our mission at church हमारा मिशन क्या है कलीसिया is to में? raise up fervent followers of कि Jesus लगातार आगे बढ़ने वाले ऐसे अनुयायियों को हम यीशु मसीह के लिए खड़ा करें, who will reach out and impact communities, cities, and nations for the kingdom जो of God. आगे बढ़ जाएंगे और प्रभाव डालेंगे समुदायों के ऊपर, शहरों के ऊपर और राष्ट्रों के ऊपर परमेश्वर के राज्य का। How will we do this? कैसे हम इन चीजों को करेंगे? Through planting churches. हम कलीसियाओं की स्थापना करेंगे। We want to see more churches हम planted. चाहते हैं कि और भी कलीसियाओं की स्थापना की I जाए। believe God has given us a mandate to plant churches in the Tri-City region. मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि हम इस पूरे ट्राई सिटी के क्षेत्रों में जाकर कलीसियाओं की स्थापना करें। We want to see new churches planted in Derabasi. हम चाहते हैं नई कलीसियाएं डेराबस्सी में स्थापित हो। We want to see churches planted in Lalru. हम लालरू जगह है उस जगह में भी चाहते We हैं want कि to see कलीसिया churches स्थापित planted हो। in Kharad. हम खरड़ में कलीसिया की स्थापना करना चाहते हैं। Who will be the pastors? कौन होगा उनका पासवान? Who will be the people who will do it? कौन होंगे वो लोग जो उसको करेंगे? You are the people. आप हैं वो लोग। God will raise up some of you परमेश्वर आप में से किन्हीं लोगों को खड़ा करेगा to become pastors, कि आप पासवान बन जाएं, to become church कि आप planters कलीसियाओं की स्थापना करने वाले बन who will जाएं, plant new जो churches. नई नई कलीसियां को स्थापना We will be करेंगे। committed to evangelism. हम इस चीज के लिए समर्पित होंगे कि हम सुसमाचार का प्रचार We करें। are committed to worship. हम समर्पित हैं कि हम परमेश्वर की आराधना We are करें। committed to discipleship. हम समर्पित हैं कि हम जो है चेला बनाएं। That's why we meet together during the week in life groups, इसलिए हम हफ्तों के बीच में लाइफ ग्रुप के द्वारा मुलाकात करते so हैं that we become true disciples of Jesus. ताकि हम यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी बन जाएं। We will be involved in compassion हम ministries, एक जो है तरस वाली सेवकाई में जुड़ जाएं। helping those who are in need, जो लोग जरूरत में हैं उन लोगों की सहायता करें। praying for the sick, उन लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करें। visiting those who are in hospital. जो अस्पतालों में है उनको जाके मुलाकात करें। And finally, we'll be committed to taking this gospel to communities and people that have never heard the name of Jesus before. और आखिरी में हमको उन लोगों तक पहुंचना है जिन्होंने आज तक कभी भी उस यीशु के नाम को सुना नहीं है। Friends, that is the mission of Life Bridge. मित्रों, ये ही हमारे लाइफ ब्रिज कलीसिया का मिशन है। Amen. This is why we exist. इसी कारण से हम इसी समय यहाँ पर जीवित हैं। So with that takes us to our values. और फिर यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे हमारे मूल्यों पर। So God has given us these very specific values that we want to see practiced and lived out in our church. परमेश्वर ने हमको इन मूल्यों को दिया है जो हम इस कलीसिया में हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम इनके आधार पर अपना These are biblical kingdom values. ये बाइबल आधारित परमेश्वर के राज्य के मूल हैं। Number 1, सबसे पहला, we want to empower servant leadership. हम चाहते हैं कि सेवक नेतृत्व को हम और सशक्त करें। We believe that leaders are servants first. हम ये विश्वास करते हैं जो अगुवे होते हैं कलीसिया के वो सेवक होते हैं पहले। As leaders, we are here to serve the people. यहाँ पर हम अगुवे बनकर हम आपकी सेवकाई, लोगों की सेवकाई करने के लिए हैं। Amen. That's what Jesus said. Jesus taught. यीशु ने भी हमको यही सिखाया है। Remember when Jesus washed the feet of the disciples? आपको याद है जब यीशु ने चेलों के पैरों को धोया था? What was he demonstrating? क्या दिखा रहे थे He यीशु was वहाँ पर? demonstrating servanthood. यीशु वहाँ पर सेवक होने को दिखा रहे How थे। many of you know that you all are leaders? आप में से कितनों को पता है कि आप में से कई लोग यहाँ अगुवे बैठे हैं। You may not be an ordained pastor, शायद आपको यहाँ पर एक पासवान के रूप में ऑर्डेन but नहीं किया there गया is a है, calling of leadership upon each one of you. लेकिन आप सबों के जीवन में परमेश्वर के द्वारा दी गई एक बुलाहट है अगुवे होने की। Who is a leader? कौन है अगुआ? A leader is someone who is followed by other people. एक अगुआ वो होता है जो किसी के द्वारा चलाया जाता है। Somebody is following you. कोई आपका पीछा कर रहा है। Your children are following you. आपके बच्चे आपका पीछा कर रहे In हैं। your office, you may have co-workers that are following you. आपके ऑफिस के क्षेत्रों में वहां पर आपके ऑफिस के काम करने वाले लोग हैं जो आपका पीछा कर रहे हैं। Here in church, there are people who are watching you and saying, I want to be like this man. इस कलीसिया में यहाँ पर आपको देखकर कोई चाहता है कि वो आपकी तरह बनना चाहता So है। if you are influencing other people, अगर आप दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, you are a leader. आप एक अगुवे हैं। But we don't want to have haughty leaders with a big head. लेकिन हम ऐसे अगुओं को नहीं चाहते हैं जिनका सर बहुत बड़ा है, बहुत घमंडी हैं जो। We don't want leaders who want
two people to carry their mobile phones. हम ऐसे यहाँ अगुओं को नहीं चाहते हैं जो चाहते हैं कि उनका कोई 2 मोबाइल फोन पकड़कर चले. We don't want leaders with bodyguards around. हम नहीं चाहते ऐसे उन अगुओं को यहाँ पर जिनको रक्षक चाहिए अपने साथ में. Hallelujah. We want leaders who are servants. हम ऐसे अगुओं को चाहते हैं जो सेवक हो. That's a value. ये मूल्य है हमारा. We want, number 2, we want our church to be fervent, Christ-centered spiritually. और हम चाहते हैं कि इस कलीसिया में हमारा दूसरा मूल्य ये है कि हम मसीह आधारित आत्मिकता में निरंतर बढ़ते चले जाएं. As I mentioned earlier, we want Jesus to be the center of everything. जैसे मैंने पहले कहा कि हम चाहते हैं हर चीजों में मसीह हमारा केंद्र हो. Hallelujah. And that include our prayer life. और वो इस चीज में सम्मिलित करती है कि हमारा प्रार्थना का जीवन. That includes our love for others. ये बताता है कि हमारा प्रेम लोगों के साथ कैसा है. Our passion for the word of हम God. परमेश्वर के वचन के लिए कैसा जुनून को रखते हैं. Amen. The third value, तीसरा मूल्य, we want to be a biblically based church. हम ऐसी कलीसिया बनना चाहते हैं जो बाइबल आधारित कलीसिया है. Our teaching, our preaching needs to be centered on the word of God. हमारा जो अध्ययन है, हमारी जो शिक्षा है, वो परमेश्वर के वचन पर आधारित होनी चाहिए. That's why I want to encourage all of you to read your Bible at home. इसलिए आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं अपने घरों में अपनी बाइबल को जरूर से पढ़ें. And whatever is taught from the pulpit, और जो भी यहाँ पुलपिट से आपको सुनाया जाता है, go home and check with the Bible to see whether what pastors are teaching you is from the Bible or not. घर जाकर अपनी बाइबलों को देखें और परखें कि जो प्रभु के दास ने कलीसिया में प्रचार किया था वो बाइबल से मेल जोल खाता है कि नहीं खाता है. Whatever is not from the Bible, जो चीजें बाइबल से नहीं है, don't accept it. उसको स्वीकार ना करें. Amen. The Bible is our measuring rod. जो बाइबल है वो हमारे माप की एक वो चीज है. We also want to be compassionate. हम ये भी चाहते हैं कि हम तरस से भरे हों. We want to extend mercy and love to people. हम दूसरों को दया और प्रेम दिखाना चाहते We हैं. want to help those who are in need. जो जरूरत में है उनकी मदद करना चाहते हैं. We want to restore those people who have fallen away in their faith. जो लोग अपने विश्वास से गिर चुके हैं उनको पुनः वापस लाना चाहते हैं. Amen. That's our value. ये हमारा मूल्य है. Number 6. छठी बात, We are a church where there is unity in diversity. हम एक ऐसी कलीसिया है जहां अनेकता में एकता है. Hallelujah. Isn't it wonderful that we are truly international? क्या ये अद्भुत नहीं है कि हम बहुत ही ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हैं. We have Colombians. हमारे पास कोलंबियन लोग हैं. We had Koreans before. हमारे पास पहले कोरियंस आते थे. We had African. We have Africans. हमारे पास अभी भी अफ्रीकन लोग हैं. Amen. We have Manipur. हमारे बीच में मणिपुर है. We have Kerala. केरला है हमारे We बीच have में. Andhra. आंध्रा है. We have Tamil. तमिलनाडु है हमारे बीच We में. have Oriya. उड़िया भी है. We have Himachali. हिमाचली भी We have है. Punjabi. पंजाबी भी है. Come on. Amen. उत्तराखंड. We have people from UP. यूपी भी है, उत्तराखंड. Amen. We have people from everywhere. हमारे पास सब जगह से लोग हैं. But what holds us together लेकिन क्या चीज है जो हमको एक करके is रखती the है? love of Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है. There is unity in diversity. अनेकता में एक एकता है हमारे We बीच want में. to be multicultural. हम चाहते हैं कि हम अन्य प्रकार से बहुत ही संस्कृति वाले लोग हों. And we want to respect every culture. और हम हर संस्कृति का आदर करना And चाहते we हैं. also want to be multi-generational. और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अन्य प्रकार से We want to be multi-generational. We want to cater for the needs of different generations. और हम जो है एक ऐसी कलीसिया बनना चाहते हैं जो हर पीढ़ी की चिंता करे. That's why we have a special room for life babies. इसलिए हमारे पास एक अलग से कमरा बना है जो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए. We have one room for the grown-up children. फिर थोड़े बड़े बच्चों के लिए एक दूसरा कमरा बना है. And we have this room for all the big adults. और फिर सब बड़ों के लिए हमारे पास ये कमरा And है. in this room we have older folks like me. और यहाँ पर इस जगह में बुजुर्ग लोग भी हैं जैसे पास्टर. And we have those baby boomers, the mushroom generation. और ऐसी भी एक है जो अभी उठ रही हैं, चमक रही हैं. Yeah. So it's a multi-generational church. इसलिए हमारी कलीसिया जो है हर प्रकार की पीढ़ी, हर प्रकार की उम्र की कलीसिया Amen. है. And finally, number 7, और आखिरी में we want to be creative. हम बहुत ही ज्यादा एक
रचनात्मक होना चाहते And we हैं also want to do everything in excellence. और हम हर चीजों को बहुत ही उत्तीर्ण या उत्तम करना चाहते हैं। Creative and excellence. हम जो है बड़ा रचनात्मक होना चाहते हैं और हम हर चीजों को बड़ा श्रेष्ठ करना चाहते हैं। We don't want to have a dirty church when you come into the church. जब आप कलीसिया में आए, हम नहीं चाहते कि हमारी कलीसिया बिल्कुल गंदी सी पड़ी रहे। We want our toilets to be clean. हम चाहते हैं हमारे शौचालय बिल्कुल साफ रहें। We want to make sure that our trash bins are emptied out every day. हम चाहते हैं कि हर दिन प्रतिदिन हमारे कूड़ेदान जो है साफ रहें। We want to make sure that everything that we do is done in excellence. हम चाहते हैं हर चीजें हम जो यहाँ करते हैं वो बहुत ही उत्तम की जाएं। Amen. Amen. Excellence glorifies God. जो उत्तमता है वो परमेश्वर को महिमा देती है। Hallelujah. Hallelujah. Excellence also blesses one another. और जो उत्तमता, जो श्रेष्ठता है वो एक दूसरे को आशीष भी देती You है। feel good when you come to a good clean place. जब आप एक अच्छे साफ जगह में आते हैं आपको अच्छा लगता है। Right? And so it is a blessing for us. इसलिए ये हमारे लिए आशीष है। And so what does all of this means? तो ये इन सब चीजों का क्या अर्थ है? It means you need to start loving your church. आप इसका मतलब ये है कि आपको अपनी कलीसिया से प्रेम करना शुरू करना If है। you value church, अगर आप अपनी कलीसिया को मूल्य देते हैं, you need to give importance to your church. आपको अपनी कलीसिया को महत्व देना है। How many of you value LifeBridge? आप में से कितने लोग लाइफ ब्रिज को कीमत देते हैं? Amen. How मूल्य many of you देते हैं? believe that this is a God-given mission and vision? आप में से कितने लोग सोचते हैं ये परमेश्वर का दिया गया मेरा दर्शन है, एक मिशन है? That means we need to put some treasure there. इसका मतलब हमें कुछ खजाना वहां रखना है। Because then if our treasure is not there, our heart will not be there. इसका मतलब अगर हमारा दिल, खजाना वहां नहीं है तो हमारा दिल भी वहां नहीं है। And one of the treasure that we have is our money, और जो एक खजाना है वो हमारा धन भी है। right? And that's why we want all of you as members of the church who values the church to give your tithes and your इसलिए offerings. बहुत जरूरी है कलीसिया के भाग होकर, कलीसिया के मूल्यों को समझते हुए हमको अपने दशवांश को देना है। Hallelujah. Amen. Your tithe belongs to the church that where you are part of. आपका दशवांश जो आपके पास है वो परमेश्वर के लिए है, उस कलीसिया के लिए है जिसमें आप जाते हैं। There may be some wonderful pastors doing many ministry out there. बहुत से अच्छे पासवान लोग होंगे जो अलग-अलग सेवकाइयां कर रहे You may होंगे। know them, आप जानते होंगे उन्हें। and maybe some of them need some financial help और also. शायद उनमें से किन्हीं लोगों को आर्थिक जरूरत भी हो रही होगी। It is good to help those pastors, ठीक है, उनको मदद करना अच्छी बात है। but your tithe is not to be given away as free will gifts. लेकिन आपका दशवांश जो हर महीना हम देते हैं वो हम किसी और को ऐसी स्वेच्छा से नहीं दे सकते हैं। Those help that you give is over and above your tithe. आपका जो दशवांश है उससे हटकर वो दान है जो आप किसी और को देते हैं। Amen. So let's really value the church by giving your tithes and your इसलिए बहुत offerings. जरूरी है कि हम अपने दशवांश, अपने दान को कलीसिया में देकर Number उसका 2, आदर करें। दूसरी बात, I want to encourage you to pray for LifeBridge. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लाइफ ब्रिज कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। Don't go to sleep even a single day without praying for church. कोई भी अपनी रात ऐसे ना सो जाए जब आप अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना ना करें। And every day, और हर दिन at least to one person, एक व्यक्ति you must say something praiseworthy about your church. अपनी कलीसिया के लिए एक ना एक बार जरूर तारीफ की बोलिएगा। Hello. कम से कम एक बार हर दिन किसी से LifeBridge के बारे में कुछ अच्छे बात बोलना। Amen? Amen. That's a good practice. ये एक बड़ा अच्छा प्रयास है। It means you value your church. इसका मतलब आप अपनी कलीसिया को मूल्य देते हैं। If you value your wife, you will tell about your wife. अगर आप अपनी पत्नी को मूल्य देते हैं तो आप अपनी पत्नी के बारे में दूसरों को If you बताएं। value your husband, you will talk about your husband. अगर आप अपने पति को मूल्य देते हैं तो आप अपने पति के बारे में दूसरों को बताएं। Right? So if you value your church, अगर आप अपनी कलीसिया को मूल्य देते हैं, say something good about your church. कुछ ना कुछ जरूर अपनी कलीसिया के बारे में अच्छा बोलें। And finally, और आखिरी में learn to remember these values. और इन मूल्यों को याद करना, कंठस्थ करना And the सीखें। way you relate to each other, और जिस तरह से आप एक दूसरे से अपना मेल जोल रखते हैं, the way you live your life, जिस तरह से आप अपने जीवन को बिताते हैं, live according to these values. इन मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को बिताएं। Amen? Amen. God has called us as a church परमेश्वर ने हमको कलीसियाई रूप से बुलाया है to create a legacy for Him, कि हम आने वाले समय के लिए कोई छाप छोड़ दें, to create a destiny. कि हम एक लक्ष्य आगे छोड़ दें। And I pray और मैं ये प्रार्थना that करता हूँ LifeBridge will be a lighthouse कि जो लाइफ ब्रिज कलीसिया है वो एक ज्योति का घर बन जाएगी till the Lord's return. जब तक परमेश्वर वापस नहीं आता। Hallelujah.
Hallelujah. Whether James is here or not, चाहे पास्टर जेम्स यहाँ है या नहीं है, whether Pastor Jobin and Mercy is here or चाहे not, पास्टर जॉबिन मर्सी है या नहीं है, God will always raise up His people. परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को खड़ा करेगा. Hallelujah. Amen. If it is not me, अगर मैं नहीं हूँ it will be somebody तो else. कोई और होगा. But our prayer as a church लेकिन कलीसियाई रूप से हमारी प्रार्थना ये is the है, last 14 years of investment, 14 साल का जो निवेश किया गया है, of lots of money we invested, बहुत सा धन निवेश किया गया है, lot of hard work we invested, बहुत सा जो तपस्या की गई है, a lot of tears we shed praying for the church, बहुत से आंसू बहे हैं इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए that it will live on till the Lord returns. कि वो बना रहेगा, जीवित रहेगा जब तक प्रभु बादलों पे नहीं आ जाएगा, So the name of the Lord will be glorified. ताकि प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा We पाएगा. want to take many people to eternity हम with us. कई लोगों को अपने साथ उस अनंत काल में ले जाना There are चाहते many हैं. people in Chandigarh, कई ऐसे इस चंडीगढ़ क्षेत्र में बहुत से many लोग people हैं, in Mohali, कई ऐसे लोग हैं जो मोहाली में हैं, many people in Panchkula बहुत से लोग हैं जो पंचकुला में हैं. that needs to hear the Savior's name. उनको उद्धारकर्ता के नाम को सुनना Would you है. say yes, Pastor? क्या आज आप सुबह बोलेंगे हाँ पास्टर, I want to be part of this church. मैं इस कलीसिया का हिस्सा बनना I want चाहता to हूँ. commit to the values of this church. मैं इस कलीसिया के जो मूलभूत जो मूल्य हैं उन पर अपने आप को These समर्पित करना kingdom चाहता हूँ. biblical values. ये परमेश्वर आधारित बाइबल आधारित मूल्यों So के that ऊपर, through my life, ताकि मेरे जीवन से God's work will be accomplished. परमेश्वर का कार्य पूरा हो He has जाएगा. chosen you उसने आपको चुना है, and He has established you and planted you in this church. उसने आपको स्थापित किया है और इस जगह में बोया है इस कलीसिया में, So that together ताकि हम मिलकर we can do something for God. हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सकें. I cannot do it alone. मैं अकेले नहीं कर You सकता, cannot do it alone. आप अकेले नहीं कर सकते But हैं. together हम मिलकर we एक can साथ do something for God. हम कुछ प्रभु के लिए कर And सकते हैं. Life Bridge is the place. और लाइफ ब्रिज वो कलीसिया है.